गाड़ी ने क्यों रोकी? गाड़ी क्यों रोकी? For ceremonial lighting. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान यही होगा। वतन पर मिटने a global movement for peace, prosperity, brotherhood, communal harmony, and national integration. 39th One-Day Peace Conference organized by Jammu and Kashmir Peace Foundation, being inaugurated by Shri N.N. Bora, His Excellency, Governor of Jammu and Kashmir. On the eve of Shahidi Divas of Father of Nation, Mahatma Gandhi. Ladies and gentlemen, we have amongst us Honorable Chairperson Mamta Sharma of National Commission for Women. Ladies and gentlemen, please give a big hand of applause. Now I would like to call Mr. Ghulam Hassan Mir to facilitate the Governor General, His Excellency. Sheikh Ghulam Rasool, Sheikh Abdul Rahman, Yashpal Kundal, Shri Kuldeep Hooda, Director General of Police, Jammu and Kashmir, Mr. Anil Kapahi, खड़े करो जी।
फोटो है। मैं आदरणीय गवर्नर साहब जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अन्य अतिथिगण से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह अपने अपना स्थान ग्रहण करें। I request नहीं फोटोग्राफी चालीस सर अभी चालू हो गया बस कैसे how are you? Good morning, esteemed dignitaries. I take this opportunity to extend a warm welcome to all of you on the 39th Peace Conference, which is being organized on the eve of Republic Day and Matriarch Day of the Father of our nation, Mahatma Gandhi Ji. At the outset, let me begin by expressing our warm welcome to esteemed Shri Anand Bohra, His Excellency Governor Jammu and Kashmir, who is the chief patron for this special meet. We are honored and indeed grateful to him for graciously and readily accepting our invitation. Also, I would like to extend a warm welcome to our guest of honor, Srimati Mamta Sharma, Chairperson, National Commission for Women. I particularly take note of Janab Ali Mohan Sagar, Honorable Minister for Law, Parliament Affairs and Rural Development. Janab Ghulam Asif Mir, Honorable Minister for Agriculture, Janab Kamar Ali Kashmir, Shri Yashpal Kundal, Honorable MLC Samba, Janab Sheikh Abdul Rahman ex-MP, Janab Abdul Rashid Kabli ex-MP, Janab Kuldeep Hooda ji DGP Jammu and Kashmir, Janab Firoz Ahmed Khan Mala MLA Janskar. On the behalf of Shri Ravi Shankar, Srimati Dilwar Bedi, Director Art of Living, in spite of facing great difficulties and challenges, has made his organization a success for 15 years. Janab Roshanlal Malaji, President Haryana Chapter, who has always supported the foundation. Also, I would like हमें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और अपना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करें। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ भी
मनाया प्यार से। इसमें इन्होंने प्यार का संदेश दिया है कि प्यार के जरिए Ali Mohammed Sagar ji, Honorable Minister for Law, Rural Development, Panchayati Raj and Parliamentary Affairs, Government of J&K, Janab Ghulam Hassan Mir ji, Honorable Minister for Agriculture, Government of J&K, Shri Kamal Ali Akhoon ji, Honorable Minister for CAPD and Transport, Janab Sheikh Ghulam Rasool ji, Honorable MLC and former Chief Secretary, Government of J&K, जनाब शेख अब्दुल रहमान ex-MP, जनाब अब्दुल रशीद काबली ex-MP, श्री कुलदीप हुड्डा जी, DGP J&K, मैडम दिलराज बेदी, डायरेक्टर आर्ट ऑफ लिविंग, जनाब फयाज अहमद भट्ट चेयरपर्सन, जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन, श्री अनिल कपाई जी, प्रेसिडेंट जम्मू रीजन JKTF, श्री सौजनी शर्मा जी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर, व देश के कोने कोने से आए अन्य मेहमानगण, प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों सबको मेरा हाथ जोड़कर आदाब, नमस्कार एवं राम राम। सबसे पहले तो मैं श्री फयाज अहमद भट्ट साहब को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस प्रदेश में JK पीस फाउंडेशन को लगभग 15 वर्षों से न सिर्फ दिन रात एक करके इसकी नींव को मजबूती दी, बल्कि इसके बैनर तले हजारों बेसहारों, अनाथों एवं विधवाओं की भरपूर मदद भी की, जिस वजह से पीस फाउंडेशन का दायरा रियासत के कोने कोने से फैल रहा है। क्योंकि अमन और भाईचारे के लिए काम करना सबसे बड़ी इबादत है और इसी के साथ मैं जम्मू के आवाम को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बार उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ मैं चेयरमैन साहब व अन्य अहदेदारों से अपील करता हूँ कि इस पीस फाउंडेशन का दायरा देश के अन्य राज्यों में भी स्थापित किया जाए, क्योंकि अगर किसी राज्य में सुख चैन व भाईचारा बना रहेगा तभी वह राज्य और ज्यादा उन्नति कर सकेगा, प्रगति कर सकेगा। अंत में मैं इस स्टेज के माध्यम से आप सबको अपने गृह राज्य हरियाणा में आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि अगली बैठक इस कॉन्फ्रेंस की हरियाणा में ही करना चाहते हैं, जिसमें मैं हिज एक्सीलेंसी श्री वोरा साहब जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हरियाणा में होने वाली पीस कॉन्फ्रेंस में अवश्य शिरकत करें व वहां की आम जनता को भी अमन चैन बढ़ाने व भाईचारा मेंटेन करने के लिए हमें गुर सिखाएं, ताकि उनके अनुभवों का वहां की जनता को भी फायदा हो सके। तथा मैं इस फाउंडेशन के चेयरमैन श्री फयाज साहब व अन्य पदाधिकारियों को विशेष रूप से श्री अनिल कपाई जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया व मुझे भी आमंत्रित करके अपने विचार रखने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. I would like to call upon stage आज की इस अमन कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी एस्टीमेट शेख एल वोरा साहब, हिज एक्सीलेंसी गवर्नर जम्मू कश्मीर, जो हमारी इस अजीम मूवमेंट के सरपरस्त आला भी है। आज की इस कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे पद्म भूषण बलराजपुरी जी, कॉन्फ्रेंस में शामिल मेहमानानी खुसूसी, मेहमानानी ज़ीबाकार बहन ममता शर्मा जी, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जनाब गुलाम हसन मीर साहब, मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, जनाब शेख गुलाम रसूल साहब,
Honorable MLC, former Chief Secretary, Janab Kuldeep Hooda Sahab, Director General of Police Jammu Kashmir, यशपाल कुनल जी, ऑनरेबल MLA सामा, फेरोज अहमद खान साहब, ऑनरेबल MLA जानसकार कारगिल, जनाब शेख अब्दुल रहमान साहब, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, जनाब अब्दुल रशीद काबली साहब, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, और यहाँ पर बैनुल-अवामी सतह के मुमताज गुरु श्री रविशंकर जी के नुमाइंदे मोहतरमा दिलराज बेदी जी, जो डायरेक्टर आर्ट ऑफ लिविंग है, माला साहब, अबे प्रदाल जी, शेख मोहम्मद शफी जी, चौहान साहब, एडवोकेट DK सिंह जी, अनिल कपाड़ी जी, सरोजनी शर्मा जी, जनाब वटानी साहब, FA जकी साहब, KK खोसा जी, मैं सबों का नाम अगर लूंगा तो टाइम उसी में निकल जाएगा। रियासत के कोने कोने से आए हुए मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के सरबराहान, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि आप जानते हैं कि हर साल 28 जनवरी को रिपब्लिक डे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहीदी दिवस के मौके पर कोई दोस्त मंदिर बनाने के लिए निकलेगा, मस्जिद बनाने के लिए निकलेगा, वो ये कह देगा कि मुझे किसी तरह के वसाइल नहीं है, हमारे पास किसी तरह की सपोर्ट नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन मैं मंदिर और मस्जिद बना रहा हूँ, मैं मुसाफिर खाना उसके साथ बना रहा हूँ जिसमें लोगों को आशाएं करेगी। लेकिन उसको ये याद रखना, उसको इस चीज पे भी बिलीव करना कि टोटल 30% लोग उसका सपोर्ट करेंगे, 70% फिर भी मुखालफत करेंगे। लेकिन मैं अपने साथियों से कह रहा कि हमें उस चीज की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हम एक अच्छे और नेक काज के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू के अवाम की बात करते हैं, जब कश्मीर में तशद्दुद की आग बढ़ी, खून खराबा शुरू हुआ, कत्लगारगिरी शुरू हुई, हमारी ही भाई चाहे मुस्लिम हो, कश्मीरी पंडित हो, वो जम्मू आए और जम्मू के अवाम ने उनको गले लगाया और उन्होंने एक सही सेक्टर मुल्क है दुनिया के जमहूरी मामले में हमारे देश का एक अजीम मुकाम है। इस मुल्क की आजादी के लिए हर तरीके के लोगों ने कुर्बानी दी। आज मैं एक बात बताऊं, आज ये चीज अयान हो रही है कि ये मुल्क तब तरक्की करेगा जब हर कम्युनिटी के, हर मजहब के लोग तरक्की करेंगे। इस मुल्क का सिख तरक्की करे, मुसलमान तरक्की करे, हिंदू तरक्की करे, और वही चीज